We have to start with the definition of business economics. There are two definitions in your notes, and if you go through those definitions, read those definitions, one thing is very clear, that business economics is nothing but an applied form of economic theory, using the different laws, principles of the economic theory to take the business decisions, is nothing but business economics. अब यहाँ पर जोएल डीन की डेफिनेशन दी है, आप उसको वो लिख लें जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ध्यान रहे, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अलग है और फादर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी अलग है. एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, इकोनॉमिक्स, और वो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज को, लॉज को, प्रिंसिपल्स को यूज करके कैसे बिजनेस डिसीजन लेना, यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट वाज फॉर दैट फादर इज जोएल डीन. इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन आए तो हमारे दिमाग में, खासकर जो कॉमर्स ऑलरेडी पढ़े हैं, फटाफट आ जाता है एडम स्मिथ. फादर देखा है ना एडम स्मिथ, तो हर फादर एडम स्मिथ नहीं हो सकता, बराबर? तो ध्यान रहे इस बात का. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन. बिजनेस इकोनॉमिक्स टर्म्स, business economics in terms of the use of economic analysis in the formation of business policies. Economics is essentially a component of applied economics, as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, regression analysis, capital budgeting, break-even analysis, cost analysis. Now you will find, if you recollect, I said when I was briefly dealing with the definition given by Robbins, I said any systematic body of knowledge can be termed as economics, can be termed as a science. So economics is also a science. I gave you the 4 reasons why economics is a science. 4 reason बताए थे मैंने आपको. पहला reason था, like all sciences, economics also study about cause and effect relationship. Like all sciences, economics also has its own methods to study the cause and effect relationship. Like all sciences, economics has objectivity, that is the variables under consideration can be measured, and economic variables can be measured in terms of money. And lastly, like all sciences, economics also has the power or capacity to predict about the future. ये चारों फीचर्स जो साइंस के नॉर्मली होते हैं, ये इकोनॉमिक्स में भी मौजूद है. ठीक है ना? मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल लेकर बताया था. अगर आपको याद हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, facts relating to the human behavior has been collected, has been coordinated, has been tested, has been retested, ठीक है, and then presented to us in the form of various laws, theories and principles. Not only that, over a period of time, many quantitative techniques that you are going to study in statistics also have been developed to analyze the cause and effect relationship. जहां इकोनॉमिक्स आएगा वहां स्टैटिस्टिक्स भी आएगा, बराबर? तो वो सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. सो व्हाट वी आर डूइंग, we are making the subject economics as a subject very useful. And when all these techniques that has been developed over a period of time, ठीक है, are used for taking the business decision, it becomes business economics. So regression analysis भी आप statistics में पढ़ेंगे,
कैपिटल बजटिंग अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं, बजट्स कैसे बनाते हैं, कैपिटल बजट क्या है, रेवेन्यू बजट्स क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कब आता, कैसे आता, उसके बाद क्या करना, एक्सेट्रा। ऑल दीज आर अ पार्ट of the different subjects, be it mathematics, be it statistics, be it accounting, be it cost accounting, economics, etc. तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा जो हमको इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए चाहिए हम उसका यूज करते हैं, and that makes economics and business economics a more organized and a systematic body of knowledge. Okay, second definition is more easy. Douglas key. Business economics is concerned with the application of economic laws, principles and methodologies to the managerial decision making process within a business firm under the conditions of risk and uncertainties. Okay, so it is again the same thing, application of laws, theories and principles to take the business decision. Business economics kya hai? Using the laws, theories and principles of economic theory in order to take the business decision. Practical side of the economic theory is nothing but business economics. But यहाँ पर एक बात आई, under the conditions of risk and uncertainties. Future is always uncertain, unpredictable. ठीक है, business involves, every business involves risks, uncertainties. Now Professor Knight ने बिजनेस रिस्क को दो में क्लासिफाई किया है. वन इज कॉल्ड एज फोरसीएबल रिस्क और इंश्योरेबल रिस्क. जिन्होंने कॉमर्स किया शायद उन्होंने इंश्योरेबल रिस्क टर्म पढ़ा हो. अनफोरसीएबल रिस्क, दैट इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क, विच ही टर्म्स इट एज अनसर्टेनिटीज, जिसको वो क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटीज. तो प्रोफेसर नाइट classifies the business risks into two, insurable and non-insurable. Is that clear? According to Professor Knight, there are certain business risks which can be foreseen, जिसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भविष्य में इस कारण से नुकसान हो सकता है, संभावित नुकसान हो सकता होगा, कोई जरूरी नहीं है. बाढ़ हमेशा आएगी, हर साल आएगी, हर 6 महीने में आएगी, ऐसा नहीं होता. पर कभी कभार 8-10 सालों में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा एरिया के. आई होप इट इज क्लियर. आग रोज नहीं लगती, मगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ड्यू टू फायर. सो ऑल सच रिस्क विच कैन बी फोरसीन, ठीक है ना, कैन बी कवर्ड बाय टेकिंग आउट insurance policy, and in case of any eventuality the insurance company compensates the loss. Is that clear? इसलिए ये रिस्क जिसको हम फोरसी कर सकते हैं, जिसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कभी इस कारण से नुकसान हो सकता है, तो हम उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी निकालकर वो रिस्क को कवर कर लेते हैं. इसलिए वो रिस्क कौन सी हैं, इंश्योरेबल रिस्क है. फोरसीएबल रिस्क यानी इंश्योरेबल रिस्क. बट देयर आर सर्टेन रिस्क व्हिच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कैन नॉट बी फोरसीन. देयर माइट बी सडन चेंज इन द बिजनेस एनवायरमेंट. कहीं पर भी, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, बिजनेस एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ सो मेनी थिंग्स. बिजनेस फर्म का जो कंपाउंड वॉल है, ठीक है ना, उसके बाहर जो भी है वो सब क्या है, बिजनेस एनवायरमेंट है. वो सब क्या है, बिजनेस. तो एक बिजनेस फर्म को बड़े से बड़े संस्थान से लेकर छोटे से छोटे संस्थान तक इंटरैक्ट करना पड़ता है. वैरायटी ऑफ पीपल, वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना. एंड ऑल दोज आर नथिंग बट पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट. अब देखिए एक एग्जाम्पल कोट कर देता हूं. मैकडोनल्ड सबने सुना ना, खाते भी होंगे. बर्गर रहता शायद, क्योंकि मैं ये सब चीजें नहीं खाता इसलिए मुझे नहीं मालूम.
आई थिंक मैकडोनल्ड्स का बर्गर रहता है, और ऑल ओवर वर्ल्ड उनका मेन्यू वही है, बेसिक चीज क्या है, बर्गर। मगर देखिए, एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में मैकडोनल्ड गया तो वहां का एनवायरमेंट अलग था, सोशल एनवायरमेंट, ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, ठीक है ना। एंड उस वजह से आप देखेंगे बर्गर तो मैकडोनल्ड का हर जगह मिलेगा, मगर कहीं पर वो इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल वेजिटेरियंस के लिए आलू वाला मिल जाएगा, नॉन वेज वालों के लिए कुछ नॉन वेज की स्टफिंग होगी उसमें, बराबर। आप कोई समुद्री जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे चले जाएंगे तो उसमें झींगा पिंगा डाल देंगे, वो सी फूड जो भी रहता, मुझे नहीं मालूम क्या रहता, आई डोंट सी, आई डोंट ईट, सो आई डोंट नो एनीथिंग। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, जो मैं आपको एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। आई होप इट इज क्लियर। सो सोशल एनवायरनमेंट, ईटिंग हैबिट्स, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी वाइड। इट कवर्स सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना, व्हाट यू कॉल लीगल एनवायरनमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी कैन गो ऑन स्पीकिंग। तो एक बिजनेस फर्म ये सब में इन्वॉल्व रहती है, इस एनवायरनमेंट में काम करती है, ठीक है ना। कब क्या चेंज हो जाए बिजनेस एनवायरनमेंट में हम बोल नहीं सकते। हर बिजनेस चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट थ्रोज अप द अपॉर्चुनिटीज, it may throw up the opportunities to expand and grow, and it may also result in some risks. These risks cannot be predicted. These risks cannot be predicted and therefore cannot be covered by insurance. और ये सब रिस्क जो कभी भी यानी कभी भी चेंज आ सकता है, और इसलिए हम उसको इंश्योरेंस पॉलिसी से वो रिस्क को कवर नहीं कर सकते, वो नॉन इंश्योरेबल रिस्क है या अनसर्टेनिटीज है, उसको प्रोफेसर नाइट क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटीज। इज दैट क्लियर? तो अंडर द कंडीशंस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, तो रिस्क का मतलब यहां पर क्या है, इंश्योरेबल रिस्क, अनसर्टेनिटीज का क्या मतलब है यहां पर, नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इज दैट क्लियर? विच कैन नॉट बी कवर्ड बाय टेकिंग आउट द इंश्योरेंस पॉलिसी। गॉट इट? हेलो, I hope the definitions are very clear. Let's move on rapidly. आपको briefly nature of business economics दिया है। Those who have done commerce know it very well, that the subject economics is split up into microeconomics and macroeconomics. Okay, and there's scope, that is the subject, what are the topics that we study under micro and macroeconomics. Micro means small and macro means large. तो microeconomics क्या हुआ? Microeconomics is an in-depth study of individual or small units. याद रहे, rigidly individual unit नहीं होता, small units भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे नागपुर सिटी में पेपर इंडस्ट्री का बिहेवियर एनालाइज करना है तो माइक्रो है, भले ही 4 यूनिट्स होंगे, 4 फैक्ट्री होगी पेपर बनाने वाली, 4-5, ठीक है ना। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो 5 है तो माइक्रो नहीं है, वो तो मिक्रो हो गया, नहीं, वो माइक्रो ही है। आई होप देयरफॉर व्हाट डिड आई से, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एन, या सिंपल वर्ड जैसा इन्होंने कहा अभी, ठीक है, इनके बोलने से मैं भी बोल देता हूं, स्मॉल। आई होप दैट्स क्लियर। इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स, स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गुड। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द लार्ज, इट इज एन इन डेप्थ स्टडी अबाउट द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जब एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ते हैं या छोटे ग्रुप ऑफ फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कमोडिटी की डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, या ग्रुप ऑफ, जैसे हम गेहूं की डिमांड के बारे, वीट की डिमांड के बारे में पढ़े तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अगर हम फूड ग्रेन की डिमांड के बारे में पढ़ें तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू
one category of goods. I hope that's clear. तो इस तरह से रिजिडली आप यही नहीं बोल सकते कि माइक्रो का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो पहली बात तो अपने दिमाग से निकाल दो, स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट्स, इंडिविजुअल और स्मॉल यूनिट्स, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक। इज दैट ओके? चलिए अब देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, as I said, is an in-depth study of individual or small units, small number of units. Is that clear? In-depth study. Now, in order to go in for in-depth study, what we do is we slice down the economy into many small parts and then take up each part for detailed study. तो इसलिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है बोलते हैं? स्लाइसिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है? स्लाइसिंग मेथड अडॉप्ट करता है, बिकॉज वी स्लाइस डाउन द एंटायर इकोनॉमी into many individual or small units and then take up each for detailed analysis and study. Therefore, we say microeconomics adopt slicing method. Now, पहले मैं स्कोप में जाऊं उसके पहले जस्ट होल्ड ऑन। इतनी क्लासेस में रहता नहीं, मेरे इसमें बहुत कुछ रहता है और फिर वो गड़बड़ हो जाती है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, और वो कहाँ है, सबसे बड़ी बात तो है वो कहाँ है। Yes. Before I proceed further, what is the part of study? What is the scope or what is studied under microeconomics? ठीक है ना? Microeconomics basically deals with rational allocation of resources. Microeconomics deals with rational allocation of resources. It deals with the problems, principles, policies relating to the rational allocation of the resources. जिन्होंने कॉमर्स किया उनको मालूम होना चाहिए सब, because it is the basic thing that is taught when micro and macro का difference पढ़ाया जाता है. And macro economics जो है, जब हम मैक्रो में आएंगे मैं दोबारा रिपीट करूंगा, it deals with the optimum utilization of resources, full utilization of resources. ये बेसिक डिफरेंस है. आगे बढ़ने के पहले ये देखें, स्क्रीन पर देखें सब. In microeconomics, we start by taking into consideration the total amount of the resources that are available. ठीक है? And then we proceed further to explain how these resources are allocated for the production of different types of goods and services. तो शुरुआत कहाँ से करते हैं माइक्रो का एनालिसिस का, कि कितने संसाधन उपलब्ध हैं, how much is the total resources available and how these resources are distributed for the production of different type of goods and services. तो टोटल रिसोर्सेज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए, वो एक्सप्लेन करते हैं. जब हम ये बात करते हैं, प्रोसीड टू एक्सप्लेन हाउ दीज रिसोर्सेज आर allocated, ठीक है ना? This allocation of resources depend upon two factors. One, the prices of the goods and services. Two, the prices of the factors of production. तो कोई भी resources का allocation depend करता है, allocation of resources depend करता है कि गुड्स और सर्विसेज जिनके प्रोडक्शन के लिए वो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं उनका क्या प्राइस है,
और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका क्या प्राइस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक फर्म 3 प्रकार के गुड्स का प्रोडक्शन करती है, यानी कोई किसी को बोलता नहीं अरे ये फायदा है तू ये रिसोर्स, अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, रिसोर्सेज फ्लोट फ्रॉम वन प्रोडक्शन टू अनदर प्रोडक्शन। हम देखें, एक मान लीजिए एक फर्म, वन फर्म इज प्रोड्यूसिंग 3 गुड्स ए बी एंड सी। ओके, द फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल गुड ए एंड अर्न अ रेवेन्यू ऑफ ₹50 per unit. It produces good B and sell and earn say 40 rupees. Okay, it produces good C which it sells at ₹55 or 60 rupees, राउंड फिगर रखते हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए, फर्म के पास 3 प्रोडक्ट हैं, ए प्रोडक्ट बनाकर बेचने में रेवेन्यू कितना है पर यूनिट 50, बी प्रोडक्ट को बनाकर बेचने में कितना है 40 और सी प्रोडक्ट बनाने में 60। तो फर्म किसका प्रोडक्शन ज्यादा करना पसंद करेगी? सी का, बिकॉज दैट जनरेट्स मोर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉर द फर्म। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि फर्म के पास जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह फ्लो करेंगे ज्यादा? सी, शी सेड सी। आप बताइए, डू यू एग्री विथ हर? नेचुरली ना, जहां प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, फर्म के रिसोर्सेस उधर, यानी कि फर्म विल प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ सी गुड। हेलो, एंड इफ इट प्रोड्यूसेस मोर क्वांटिटी ऑफ सी गुड्स, द रिसोर्सेज विल गेट ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ मोर, टुवर्ड्स द प्रोडक्शन ऑफ सी गुड्स। हेलो, इकोनॉमी में भी यही होता है, इकोनॉमी में भी यही होता है। आई होप यू वोंट माइंड, बाद में लगा लेना। तो allocation of resources has automatically taken place in the firm towards the production of good C. I hope that's clear. तो कमोडिटी के प्राइसेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस पर डिपेंड करेगा कि रिसोर्सेज किस तरह से एलोकेट होंगे, ऑटोमेटिकली इस तरह से एडजस्टमेंट्स होते हैं इकोनॉमी में। आई होप दैट्स क्लियर। सो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टार्ट by taking into consideration the total quantity of the resources available, then try to explain how these resources are distributed for the production of different goods and services। और ये distribution जो है resources का किस पर depend करता है? prices पर, ठीक है। कौन किसके किसके prices पर? goods और services और factors of production के, ठीक है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर प्राइसेस के ऊपर एलोकेशन डिपेंड करता है तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ें, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो वी आर, it becomes necessary for us to determine how the prices of goods and services are determined, how the prices of the factors of production are determined। तो ये पढ़ना हमारे लिए जरूरी है। प्राइस डिटर्मिनेशन अगर पढ़ना जरूरी है तो किसी भी गुड्स का, किसी भी सर्विसेज का, किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस डिपेंड करेगा उस कमोडिटी, उस सर्विस, उस फैक्टर के डिमांड और सप्लाई का। तो अगर आपको प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना है तो आपको झक मारकर डिमांड और सप्लाई पढ़ना पड़ेगा, बराबर। डिमांड कम्स फ्रॉम कंज्यूमर्स, सप्लाई कम्स फ्रॉम फर्म्स, प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको डिमांड भी पढ़ना है, आपको सप्लाई भी पढ़ना है। डिमांड पढ़ना है तो आपको डिमांड कंज्यूमर्स की आती है, इसलिए क्या पढ़ना पड़ेगा? कंज्यूमर्स बिहेवियर। और सप्लाई इज डन बाय द बिजनेस फर्म्स, प्रोड्यूसर्स, बोल लो बिजनेस, इसलिए आपको अगर सप्लाई पढ़ना है तो किसका बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा? प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो
अगर ये चार्ट समझ में आया आपको जो मैंने बताया, आपको मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, दैट्स नॉट सॉफ्ट कॉपी, टेलीग्राम में, आपको टेलीग्राम ग्रुप होगा ना, जो जो मैं यहाँ फ्लैश करूंगा वो आपके ग्रुप्स में डालता जाऊंगा। अब वो आपकी मर्जी है, आप उसको सॉफ्ट रखते कि या उसको लिखते। मैं ओल्ड स्कूल का टीचर होने के नाते मैं ये बोलूंगा कि उसका प्रिंट आउट निकालने के बजाय आप 2 मिनट ज़्यादा दें और उसको लिखें। पढ़ने से, लिखने से यहाँ 2 रास्ते से यहाँ जाएगा, याद रह जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट डालना ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? ये शॉर्टकट्स होते हैं, हम तो पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स लिखे हैं, मगर आपके लिए शॉर्टकट है और रिवीजन के लिए आपको फ़ायदा है। और कई चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो आपके नोट्स में नहीं है और हम पढ़ाते हुए बता देते हैं। ठीक है? ओके, आई होप द थिंग इज क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान दे, अब देखो स्कोप में क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स covers the following: theory of product pricing, price determination of goods and services; second, consumer behavior; third, factor pricing; fourth, behavior, economic conditions of a section of people. It is related with what? It is related with the consumer behavior. Consumer का behavior उसके इकोनॉमिक कंडीशन मेनली पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, बिहेवियर ऑफ द फर्म्स यानी कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, where the particular industry or unit is located. That's all is covered within the microeconomics. I hope that's clear. और वो चार्ट में भी पूरा वही सब था। हेलो, यही सब था, अलग तरह से। रिकॉर्डिंग ऑन है? I normally forget to start the recording. तो आई होप दैट्स क्लियर। अब ध्यान दें, मैंने बोला इट माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अगर आप ये सारा चार्ट को एनालाइज करेंगे तो किससे डील कर रहा? हम कंज्यूमर बिहेवियर क्यों पढ़ रहे, हम प्राइस डिटर्मिनेशन क्यों पढ़ रहे, हम फैक्टर प्राइसिंग क्यों पढ़ रहे, डिमांड सप्लाई एक्सेट्रा, ऑल दिस वी आर स्टडिंग टू नो अबाउट द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप देखिए वो चार्ट पे, हमें सारी सिरदर्दी जो कर रहे हैं ये काहे के लिए कर रहे? फॉर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आई होप दैट्स क्लियर। आपको एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का तो प्राइस पढ़ना पड़ेगा, प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना पड़ेगा, डिमांड पढ़ना पड़ेगा, सप्लाई पढ़ना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, देयरफॉर आई सेड इन द बिगिनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट? rational allocation of resources. So this microeconomic theory deals with the problems, with the principles, problems, policies relating to allocation of resources. ठीक है, जिन्होंने पढ़ा इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आप लिख लें। It is called as partial equilibrium analysis. It is termed as partial equilibrium analysis. ग्रीन कलर में लिखा है। Why do you think microeconomics is called as partial equilibrium analysis? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको 12th में जरूर पढ़ाया होगा। It is termed as partial equilibrium analysis because there are so many hundreds and thousands of economic variables that prevail in the environment, that operate in the environment. But to study a particular aspect, all economic variables may not be important. So what we do, in order to study the cause and effect relationship, we isolate the most important variable
एंड देन एनालाइज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं. लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? देयर इज एन इनडायरेक्ट और एन inverse relationship between price and quantity demanded, other things remaining the same. There is a long list of factors determining the demand of the commodity. Correct? Is that clear? But हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो कौन सा रिलेशनशिप पढ़ते हैं? प्राइस और डिमांड का. Why? Because price is the most important economic variable to bring about changes in the quantity demanded. We shall continue tomorrow.